So hello everyone and a very good afternoon to each one of you all. आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महासेवा का जो टीम है एंड प्रभु एसोसिएट्स की जो भी फुल टीम है वो आप सबको शुभकामनाएं देते हैं और आपका जो भी ये वीक में जो भी अच्छे काम होने वाले हैं वो सब अच्छे से चाहे, यही हम चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग अबाउट फंडिंग ऑफ एन आईपीओ, फंडिंग ऑफ एक कोई न्यू स्टार्टअप, फंडिंग ऑफ अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फंडिंग जो दो कैटेगरीज भी होते हैं, इक्विटी एंड डेट, हम लोग वो आज सब उस पर हम लोग जानेंगे। एंड टुडे वी हैव विद अस सीए प्रवीण रंजन सर। मैं उनका एक अगर छोटा बायो भी दूंगा ना, इतना बड़ा बायो है कि बहुत टाइम लग जाएगा, बट इन अ शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन। ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, LLB, BCom honors and postgraduate in commerce from prestigious Sri Ram College of Commerce. He has completed his LLB degree from Government Law College. He qualified the company secretary at the age of 21 and chartered accountancy at the age of 24. तो काफ़ी at the young point उन्होंने almost जो main qualification है उन्होंने कर लिया and he entered the field of funding. He has more than a decade of professional experience. In past, he has served at a renowned rating agency and the credit department of big public sector bank at a senior position. Extremely vast experience in terms of IPOs, private equity, banking, finance, business, corporate laws, corporate structuring, due diligence, internal audits and many more. So he is also techno savvy and true visionary and has been instrumental in the growth of his firm. Thank you so much for having coming here today. And we also have with us Mr. Soumya Ranjan Senapati, who is MBA Finance from NMIMS, was completed MBA Finance from NMIMS. He is passionate about the equity markets, private equity and venture capital, investment banking, financial modeling, business valuation and even data analysis. Soumya thrives on challenges, stepping outside his comfort zone to continuously expand his skill set. Of course, he also is very young and he enjoys playing badminton and daily news, meditation also. So thank you so much for coming here today. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए we'll directly jump into our topic today. फंडिंग। जब हम लोग फंडिंग के बारे में बात करते हैं, अगर कोई लेमैन को समझना है what does funding mean, कि अगर आपको किसी को समझाना हो कि what does funding mean, कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करना उसी को फंडिंग बोलते हैं और पैसा देना उसको फंडिंग बोलते हैं, या कुछ इसमें भी और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप थोड़ा लाइट ऑन द होल टॉपिक, just an overview. Of course, we'll go into depth later on, but just an overview if you can give about what does funding mean in general. Thank you so much, Shreyas Prabhuji, for giving us opportunity to discuss about the funding and the various aspects of the funding. तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सब लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दिस महासेवा प्लेटफॉर्म to giving us this opportunity to discuss this important topic, which is funding, and how we can get the funding and when we should take the funding and to whom to approach for the funding, from where we will get the right investor or the right person who can provide us the funding. So again we thank you Mahaseva and Mr. Ramesh Prabhuji for his endeavor, so for giving us this opportunity to present about the funding. तो जो श्रेयस प्रभु जी का क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि फंडिंग क्या है और कैसे क्या होता है और क्या ओवरव्यू क्या होता है, सो फ्रॉम दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँ कि फंडिंग सिर्फ पैसा लेना नहीं है। फंडिंग इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर फंडिंग, कि हमें ज़रूरत फंडिंग की कैसे है और किस पर्पज़ के लिए हमें फंड रेज करना है। जब तक हमें पर्पज़ मालूम नहीं होगा फंडिंग का, तो हमारा जो पूरा फंडिंग का एक्सरसाइज है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जब अब फॉर एग्जांपल जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तो वैसे ही फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है हमारे पास फंडिंग का ऑब्जेक्टिव होना, कि फॉर व्हाट पर्पज़ वी आर रेजिंग द फंड। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कुड भी कि अगर आप हमें अपनी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है, हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना है, या फ्रेश डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन है, या हम कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या हम कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, या हमारी वर्किंग कैपिटल नीड है। वर्किंग कैपिटल नीड का मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर, अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, सामान मंगाना है, या अपने वर्कर्स की सैलरी पे करनी है, या कोई हमारे पास जो टैक्सेस है, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं, या टैक्सेस का पेमेंट करना है, तो ये सारा वर्किंग कैपिटल के लिए जो हमें फंड रेज करना होता है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल।
तो जब हम अपने नीड यानी ज़रूरत को पहचानते हैं कि व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड रेज, तो फिर नेक्स्ट स्टेज आता है कि हाउ टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द फंड रेजिंग पर्पसेस। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे हम क्रेडिट सोसाइटी है, चाहे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या HUF है या कंपनी है या AOP है, उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि सिर्फ कंपनी ही फंडिंग ले सकता है, कोई भी चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो या कोई भी फर्म हो, वो भी फंडिंग ले सकता है। बिल्कुल। तो अभी कैसा है श्रेयस जी, आज के समय में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप सिर्फ कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या LLP हो तभी आप फंड रेज कर सकते हैं। आप चाहे एक हाउसिंग सोसाइटी है, आप चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, या आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, या आपके पास एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या आपका HUF है, या आप 1 पर्सन कंपनी है, आप किसी भी फॉर्म में फंड रेज कर सकते हैं बशर्ते कि आप फंड रेजिंग के कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। फंड रेजिंग के कंडीशंस में आपके पास अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी दस्तावेज आपके पास हैं, आपके पास फंड रेज करने का उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्टिव है, तो आप एक सक्सेसफुली फंड रेज कर सकते हैं और देयर आर एंटिटीज़ जो आपको फंड रेज करने में उसमें हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल। आई थिंक सो आपने काफ़ी एक ब्रॉड एक ओवरव्यू दे दिया हमको अबाउट द टॉपिक। सो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि now of course we have understood about funding in general what it is ki fund is not just taking money and giving money, there are some due diligence requirements, company documents and everything required, but broadly funding are of two categories if I am correct. One is a debt funding, one is an equity funding. What is the difference between a debt funding and an equity funding? If you can highlight little bit about that to the viewers also कि debt funding का मतलब क्या है, equity funding क्या है और कब कौन सा यूजफुल है या क्या उसका प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप थोड़ा बता सकते हो ऑन दैट। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जैसे कि आपने सही बोला कि फंडिंग दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं डेट फंडिंग और एक होती है इक्विटी फंडिंग। तो जैसे कोई कंपनी है और कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, तो एक तो होती है कि वो अपने बैंक के पास चले आए, बिल्कुल, और बैंक से वो कुछ ना कुछ लोन ले सकती है। हो सकता है उसे होम लोन के लिए ज़रूरत हो सकता है उसे कोई प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत पड़े, इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, उसके कारण हो, या कोई तरह तरह के हो सकते हैं। तो डेट फंडिंग में क्या होता है कि आपको फंडिंग तो मिलती है पर आपको हर साल कुछ ना कुछ एक EMI बैंक को पे करना पड़ता है। ओके, तो जैसे फॉर इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं, इंटरेस्ट जैसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, अगर आसान शब्दों में वही बोले, एक होम लोन ही समझ लीजिए। तो जैसे हम होम लोन लेते हैं तो हम बैंक को कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट देते हैं और वही उनकी एक कमाई होती है। बिल्कुल। सिमिलरली एक और तरीका होता है जो बॉन्ड्स होता है, जैसे गवर्नमेंट भी होती है या फिर कॉरपोरेट्स होते हैं, अगर उन्हें बड़े स्केल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करती है और बॉन्ड्स के फॉर्म में हम जैसे लोगों से मनी इकट्ठा करती है एंड देन उसके बेसिस में वो एग्जांपल के तौर से सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट ने बॉन्ड किया तो आपको कैसे आप एक एग्जांपल के तौर से आप समझा सकते हैं जी। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को समझ लीजिए कि 1000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट करनी है, कोई रोड बनाना है या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो क्या करेगी कि 1000 करोड़ हमसे ले लेगी और उसके बजाय हमें 7% या 8% जो भी अपना गवर्नमेंट यील्ड चल रहा होगा उसके हिसाब से वो हमें पे करते रहेगी हर साल। ओके। तो डेट फंडिंग के दो तरीके, एक तो बॉन्ड्स हो गए और एक लोन जैसे हो गया। एक और तरीका है जैसे आपने बोला कि इक्विटी फंडिंग, तो आपने देखा होगा कि शार्क टैंक, उसमें क्या होता है, उसमें कंपनीज आती है, नई नई कंपनीज आती है और वो फंड रेज करने का ट्राई करती है एंड उसमें क्या करते हैं कि वो पैसा लेते हैं जैसे कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है जिसे 100 करोड़ फिर से चाहिए, बिल्कुल, और वो कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही धंधा करती है, तो अब उसे मान लीजिए कि 100 जो भी फंड रेज है उसका रिक्वायरमेंट है 10 करोड़। तो जैसे एक कंपनी है जिसे 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है,
तो वो इक्विटी फंडिंग में क्या होता है कि सामने वाले पार्टी को अपनी हिस्सेदारी शेयर करती है। तो मान लीजिए कि आज मेरे पास 100% इक्विटी है कंपनी की, तो मैं सामने वाली पार्टी से कुछ पैसे लूँगा और उसको सामने से अपनी हिस्सेदारी कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो ओनरशिप का हाँ। सम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मैं देता हूँ सामने वाले हाँ। को इन टर्म्स ऑफ, सपोज मेरे को 10 लोग बोलते हैं जो वैल्यूएशन बोलते हैं, समझो 100 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, जी। उसमें मैं सिर्फ 10 करोड़ इफ आई एम एबल टू गिव यू, तो वो 10% ऑफ दैट विल बी गिवन टू हिम, 10% ओनरशिप विल बी गिवन टू हिम, तो वो एक ओनर भी बन जाते हैं एंड उसके बाद मुझे पैसा भी मिल जाता है। सो दैट इज इक्विटी जो आप बोल रहे हो। यस, आई थिंक सो। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो डेट फंडिंग है इट इज मोर और लेस लाइक अ लोन काइंड ऑफ सिस्टम, एंड इक्विटी जहाँ पे है वहाँ पे आप ओनरशिप आप देते हो। तो दैट इज आई थिंक सो मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डेट फंडिंग एंड अ इक्विटी फंडिंग। एक और पार्ट है कि अच्छा। ओनरशिप के साथ साथ अब डेट, जैसे डेट में हमें क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट देते रहते हैं। बिल्कुल। इक्विटी में वो वैसा, मतलब एक ओनर के पास वो नहीं रहता है कि मुझे हर साल कुछ ना कुछ देना है, बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी दे दी अपनी हिस्सेदारी। अच्छा, तो मतलब उनको कुछ सामने से पैसा ऐसे कंटिन्यूस नहीं, इट इज जस्ट जो ओनरशिप का वैल्यू है वो बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है, वो शेयर जो भी उनका शेयर है उसका वैल्यू बढ़ता है, तो दैट इज द रिटर्न दे गेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। राइट राइट। सर, इफ यू आल्सो वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि नॉर्मली अगर कोई भी कंपनी फंडिंग चाहिए, जैसे डेट इक्विटी, मतलब डेट फंडिंग एंड इक्विटी फंडिंग तो हम समझ लिए, बट अगर कोई कंपनी जा रहा है तो शुड इफ दे वांट टू रेज आउट 100 फंड्स, 100 करोड़ रुपीस रेज करना है, तो आप एज अ इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या उनको एडवाइस दोगे कि आप डेट फंडिंग लीजिए या इक्विटी फंडिंग लीजिए, मतलब व्हाट इज मोर बेनिफिशियल इन दैट, और या इट डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस? अगर आप थोड़ा उस पर लाइट दे सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है श्रेयस जी, और ये सबसे एक महत्वपूर्ण डिसीज़न है कभी भी फंड रेज करते समय कि चाहे हमें इक्विटी रेज करना है या हमें डेट रेज करना है। और ये डिसीज़न बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि आपका बिजनेस कितना लॉन्ग रन में सरवाइव करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को। डेट फंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्विटी फंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों बहुत अलग है, और दोनों का परिणाम और जो फंड्स रेज करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो अगर मैं डेट फंडिंग की बात करूं तो डेट फंडिंग आपके बुक्स में आता है और आपको डे 1 से बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, बैंक को आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है, आपको डेट रेज करने के लिए पर्सनल गारंटी भी देनी पड़ती है, और साथ में बैंक आपको कुछ कोलेट्रल रखने के लिए भी बोल सकता है। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेट फंडिंग। अब इक्विटी फंडिंग में ना तो मेरा इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मुझे इंटरेस्ट कोई पे नहीं करना है, ना ही मुझे प्रिंसिपल पोर्शन का रीपेमेंट करना है, वहाँ पर मेरी कोई गारंटी या प्रमोटर्स के पर्सनल गारंटी भी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर मुझे कोई कोलेट्रल भी नहीं देना है, यानी मुझे कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी या मॉर्गेज नहीं रखना है किसी के साथ। तो आप लोगों को ये तो लग रहा होगा कि इक्विटी फंडिंग में ही जाना चाहिए क्योंकि हर तरीके से फ़ायदेमंद है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इक्विटी फंडिंग सबसे एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन है। अच्छा। अगर आप इक्विटी फंडिंग में जाते हैं तो वो डेट फंडिंग से भी एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन है, और उसको आपको बहुत ही सोच समझ के उसका डिसीजन लेना चाहिए। अब उसका रीज़न जानते हैं कि क्यों। अगर आप डेट फंडिंग में जाते हैं तो आपका जो ओनरशिप है, आपकी जो कंपनी में आपकी ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होती है, यानी आप कंपनी के मालिक बने रहते हैं। लेकिन द मोमेंट यू वांट टू गो फॉर इक्विटी फंडिंग, तो वहाँ पर भले ही आपको इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़े, प्रिंसिपल नहीं पेमेंट करना पड़े, कोलेट्रल नहीं देना पड़े, गारंटी नहीं देनी पड़े, लेकिन आपको अपने मालिकाना हक शेयर करना पड़ेगा किसी और इन्वेस्टर के साथ जो कि आपकी कंपनी में निवेश करेगा। अब यहाँ पर बात आता है कि जब हम निवेश करने के लिए इक्विटी फंडिंग रेज करते हैं तो वो कैसे तय होता है कि कितना इक्विटी, कितना परसेंटेज इक्विटी आएगा। तो वहाँ पर आपके बिजनेस का या आपके व्यवसाय का वैल्यूएशन होता है, यानी मूल्यांकन किया जाता है कि आपके बिजनेस का कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से ही फिर जो भी वैल्यू आती है उसके हिसाब से शेयरिंग तय होता है। अब आती है बात कि हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि वेदर टू गो फॉर एन डेट फंडिंग और इक्विटी फंडिंग। तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन वेयर इन वेरियस फैक्टर्स आर टू बी डिसाइडेड कि आज आपके बिजनेस की क्या क्या स्टेज है, कितना कैश फ्लो आ रहा है,
क्या आपकी कंपनी इंटरेस्ट और ईएमआई का पेमेंट करने के लिए सक्षम है? क्या आपके पास इतना सरप्लस कैश फ्लो है कि बिना आप अपना ओनरशिप शेयर किए हुए, बिना आप डाइल्यूशन किए हुए आप अगर फंड का रिपेमेंट कर सकते हैं, तो डेट फंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि डेट फंडिंग के साथ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी आप ओनरशिप को शेयर किए हुए, बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के लिए। क्योंकि जब आप इक्विटी फंडिंग लेते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं आता उस कंपनी में, आपको शेयर से जो है कंपनी के उनके साथ साझा करने पड़ते हैं, उसके साथ उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपके बिजनेस में। तो यानी आज तक आप जैसे अपने बिजनेस को चला रहे थे, आप उस वे में वैसे नहीं चला पाएंगे। वहाँ पर आपका निर्णय और आपके डिसीजंस जो हैं, दैट विल बी अ पार्टनरशिप डिसीजन और देयर विल बी सम एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व इनटू इट, wherein all your decisions making will be affected by that person's decision. So आपको अगर आपने एक बड़ी मात्रा में इक्विटी शेयर की है या बड़ा परसेंटेज आपने शेयर किया है, तो कंपनी के हर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आपको अपने इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। आप खुद से अपने सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। जब भी आप इक्विटी फंडिंग लेते हैं तो वो सारा कंडीशंस और एग्रीमेंट बनता है, जो एग्रीमेंट साइन होते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो आप कोई भी काम अपनी कंपनी में अपनी इंडिपेंडेंस से नहीं कर सकते। तो इक्विटी फंडिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर होना चाहिए और राइट स्टेज में होना चाहिए। तो स्टेज क्या क्या है कि आपकी कंपनी का कैश फ्लो का क्या स्टेटस है, आपकी कंपनी कितना फंड जनरेट कर पा रही है आज के समय में, और आगे का आपका ग्रोथ प्लान क्या है, आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो डेट फंडिंग से पॉसिबल है, और अगर डेट फंडिंग में लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर प्रोजेक्शंस कितना है, कितना फंड मेरे पास फ्यूचर में आने वाला है, वेदर मैं डेट को सर्विस कर पाऊँगा, अपने इंटरेस्ट को भर पाऊँगा, ईएमआई चुका पाऊँगा समय से। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन है। हर एक कंपनी को अपने कंपनी के कंडीशन को एनालिसिस करने के बाद बहुत ही केयरफुली ये डिसीजन पे जाना चाहिए। नहीं तो देयर आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स इन द मार्केट जिसका कि हेल्प हम ले सकते हैं इस डिसीजन को अराइव एट करने के लिए कि वेदर टू गो फॉर एन इक्विटी फंडिंग और डेट फंडिंग फॉर अ गिवन पर्पस, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि आपको सिर्फ इक्विटी फंडिंग में जाना चाहिए या डेट फंडिंग में जाना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है। ऑफ कोर्स जो भी बिजनेस है कोई भी स्टेज पे हो, दे हैव टू टेक अ कॉल देमसेल्व्स। और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हो, कोई कंसल्टेंसी फर्म का, और आप एक डिसीजन पे आ सकते हो कि अगर मेरा नेक्स्ट 3 इयर्स में कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, और बेस्ड ऑन दैट आप एक साउंड डिसीजन लेना चाहिए। बस ड्यूरिंग आपने जब भी ये बोल रहे थे अबाउट इक्विटी फंडिंग एंड डेट फंडिंग, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया अबाउट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक मतलब ऑफ कोर्स आप हम समझेंगे अबाउट दैट। सौम्या जी, अगर आप हम बता सकते हो कि वैल्यूएशन जो सर ने बोला कि डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉर्मली क्या क्या वो फैक्टर्स रहता है कि अगर आज मेरे को लग रहा है कि मेरा बिजनेस 100 करोड़ कमाएगा, तो क्या मैं वैल्यूएशन 1000 करोड़ कर सकता हूँ? क्या मेरे को लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट 2-3 इयर्स का मेरा प्रोजेक्शन है, फिर भी मैं 100 करोड़ कर सकता वैल्यूएशन? वैल्यूएशन के मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स कि अगर आप बिकॉज यूर अ बिजनेस वैल्यूअर, आपको क्या इंसाइट रहता है कि जब आप कंपनी को वैल्यू करते हो आप क्या क्या चीज़ें नोट डाउन रखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हाईलाइट रखते हो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। तो इसमें सबसे पहले तो होता है कि इंडस्ट्री और कंपनी किस इंडस्ट्री में है और क्या धंधा करती है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने अगर जैसे इंडस्ट्री समझ ली है तो एक बार उसके ग्रोथ प्रोजेक्शंस आपको देखने पड़ते हैं कि ये धंधा कितना, मतलब एक तो जैसे हम बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसका मतलब होता है कि अगर ये कंपनी ही उस धंधे को 100% चला रही होती तो कितना बड़ा धंधा वो कर सकती है। अच्छा, तो मतलब मार्केट फुल कैपिटल 100% उनके पास ही होता, फुल कंट्रोल, मोनोपोली बोलते हैं जैसे जी, तो तभी उनका कितना होता है। हाँ, और उसमें से फिर उससे एक आइडिया लगता है कि मार्केट कितना बड़ा है, और फिर हम इसका देख सकते हैं कि इसका मार्केट शेयर क्या है और किस ग्रोथ रेट से ये आगे बढ़ सकती है ये कंपनी। तो एक तो ग्रोथ रेट मैटर करता है। बिल्कुल। उसके बाद एक टर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका मतलब होता है कि जो मालिक है कंपनी के, उन्होंने कितना धंधा में पैसा डाला है। अच्छा। और उससे कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है कंपनी। बेसिकली जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है जो ओनर है, हुएवर है स्टार्टेड, प्रमोटर जो बोलते हैं जी, जितना पैसा उसने डाला उसको कितना पैसा वापस मिल रहा है जी। तो जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं,
बैंक ने किसी को लोन दिया, बिल्कुल। उसके बेसिस में उसको 8% 10% जो भी होता है, एक सिंपल भाषा में अगर किसी को समझना है तो वो उसके लिए रिटर्न हो गया। एक काइंड ऑफ रिटर्न हो गया। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा एक कंपनी रिटर्न ROE कमा सकती है, उसका मतलब है कि उतना ही पैसा वो अगले अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वो लगा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये लगाए एज अ ओनर, और मतलब सपोज देयर इज़ अ कंपनी A एंड देयर इज़ अ कंपनी B, and my company is company A, and I am able to generate 20 rupees out of 100 rupees as a profit, and then there is a company which is able to generate only 10 rupees. तो 20 रुपये मतलब मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा है, बिल्कुल। और वो भी मान लीजिए कि सेम ही इंडस्ट्री में है, तो मेरे पास एक एज है। जब मुझे 20% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 10% मिल रहा है, तो हाँ। मेरे पास एक एडिशनल एज है, तो इसका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। जी जी। बिल्कुल। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा फैक्टर्स हो सकते हैं कि जैसे एबिडा मार्जिन्स कैसे हैं। अच्छा, तो एबिडा मार्जिन्स में भी होता है कि अगर आप एबिटा के बारे में अगर थोड़ा बता सकते हो, व्हाट डज इट मीन, लाइक अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओके। आसान भाषा में अगर समझे तो इसको बोलते हैं कामकाजी मुनाफा। तो जो आपके ऑपरेटिंग इनकम है, अगर उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वो हो जाता है अपना एबिडा। बट हम लोग इंटरेस्ट, टैक्सेस वो सब नहीं माइनस वो सब माइनस नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट, टैक्स ये सब आपके डायरेक्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अगर एग्जांपल दूं, तो जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं, उसको जो आप खरीदते हैं वो एक्सपेंस हो गए। सैलरी जो हो गया, सैलरी आपके एम्प्लॉयज़ की वो हो गए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वो ऑफिस का रेंट भी उसमें आ जाता है। ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप लास्ट 5-6 साल के अगर कंपनी के एबिडा मार्जिन देखते हैं और वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज में है और वो स्टेबल है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास एक पावर है जिससे वो अगर रॉ मटेरियल प्राइस का अगर वोलेटिलिटी है तो उसको वो कस्टमर को पास ऑन कर पा रही है। तो जिसका मतलब है कि कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर है। कंपनी अगर मान लीजिए कि रिसेशन आता है या फिर कुछ बैड सिचुएशन आते हैं, तो कंपनी एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स एक मजबूती से कंपनी को चला सकती है। अच्छा, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लोगों को देखने चाहिए। एंड मतलब वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स है। इबिटा का होगा कि कितना इबिटा है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जी। और आई थिंक वन एक इम्पोर्टेंट आपने टच किया अबाउट दैट कि मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटर्स है। कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो और अगर आप देख रहे हो कॉम्पिटिटर्स कोई भी टाइम पे वो लोग समझो फॉर एग्जाम्पल एक 100 करोड़ रुपीस प्रॉफिट कर, जस्ट एन एग्जांपल, और अगर आपका प्रॉफिट 70 करोड़ ही है तो कंपेरेटिवली यू हैव टू ग्रो योर स्टेज, थोड़ा एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका वैल्यूएशन भी अच्छा होएगा। जी। इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी का कैसा है। तो जैसे एक पैट डॉर्सी करके एक फॉरेन के हेज फंड मैनेजर हैं, उन्होंने 4 कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात कही है। ओके। एक हो गया प्राइसिंग। अगर मैं सिमिलर इंडस्ट्री की बात करूं और मैं मान लीजिए कि मैं चेयर ही बनाता हूं और 10-15 और प्लेयर्स हैं जो चेयर ही बनाते हैं, लेकिन मैं सेम मतलब अच्छी क्वालिटी के चेयर्स सस्ते दाम में अगर मैं बना सकता हूं तो मेरे पास एक एडवांटेज हो गया प्राइसिंग का। बिल्कुल। तो एक ये हो गया। एक हो गया स्विचिंग कॉस्ट का, कि मान लीजिए कि जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसमें कंपोनेंट्स लग रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, उसने किसी सप्लायर ए से कोई कंपोनेंट लिए, लेकिन अब एक सप्लायर बी आ गया है जो उससे सस्ते दाम में बेच रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स थोड़ा सा झिझक रहा है कि मैं इसे लूँ या नहीं लूँ। तो एक अगर वो उससे लेता है सप्लायर बी से और प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया तो इसके ब्रांड इमेज में अफेक्ट होता है। तो एक स्विचिंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन देयर इज़ नेटवर्क इफेक्ट। जैसे अगर हम देखें कि चैटिंग का ही देख लेते हैं, व्हाट्सएप के बाद हाई का या यूलू, मतलब बहुत सारे आए, लेकिन अगर सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में हैं तो भले ही मुझे हाई का अच्छा ज़्यादा लग रहा होगा, मुझे वापस आने पड़ेगा व्हाट्सएप पे ही। तो दैट इज़ अ नेटवर्क इफेक्ट, क्योंकि एक नेटवर्क बना हुआ है उसका। और
एक और जो चौथा है वो है इंटेंजिबल एसेट्स का, जिसमें मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और मैंने पेटेंट्स, मेरे पास पेटेंट है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में पेटेंट्स बहुत चलते हैं, तो मेरे पास एक एडवांटेज हो गया कि जब तक मेरा वो एक्सपायर नहीं होता पेटेंट तब तक कोई और मेरे को कम्पीट नहीं कर सकता और मैं मतलब प्रॉफिट्स अपने बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक ये तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताया अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि आई थिंक सो वही है कि कोई भी कंपनी को ग्रो करना है, वो कोई भी एक चीज़ ये सब एनालिसिस करने के बाद ही ग्रो कर सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपको खुद के ऊपर तो फोकस रखना ही चाहिए, यू शुड ग्रो योर ओन बिजनेस, बट जब तक आपको पता नहीं कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है तब तक आप कुछ डिफरेंट अगर आपको करना है या कुछ उनके तरह भी करना है तो वो कॉल लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वील टेक अ स्मॉल ब्रेक। हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात किया है, बट ब्रेक के बाद हम लोग डेफिनेटली है ना एक मेजर एस्पेक्ट है अबाउट आईपीओ एंड एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर हम लोग आईपीओ पे क्या हमारा हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम लोग व्यूज लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। सो वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अभी ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम लोग ब्रेक के पहले बहुत ही अबाउट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, फंडिंग क्या है, कितने प्रकार के फंडिंग है, वो सब के बारे में जान लिया। एक और एक तरीके का फंडिंग है विच इज कॉल्ड एज आईपीओ। आईपीओ अगर जस्ट फुल फॉर्म में अगर बोलूँ तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, बट आईपीओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। लोग बोलते हैं नए कंपनीज आईपीओ में जा रहे हैं। तो सौम्या जी, व्हाट डज आईपीओ मीन? मतलब कंपनी जब आईपीओ बोलता है कि मैं आईपीओ में जा रहा हूँ, आईपीओ लॉन्च कर रहा हूँ, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रेंडिंग जैसा आपने कहा टॉपिक है। तो आईपीओ का सीधा सीधी मतलब होता है कि जैसे एक प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो रही है। ओके, पब्लिक होने का मतलब है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है और अब वो जो शेयर्स हैं उसके वो पब्लिक भी खरीद सकती है। ओके, पहले जब वो प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी थी तब
जो उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स थे वो खाली उसके ओनर्स या फिर कुछ जिसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, उनके पास तक ही सीमित थी। अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, अब हम भी उस शेयर के मतलब उस कंपनी के ग्रोथ का एक उस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छा, मतलब वो ये कि जो भी उनका ओनरशिप राइट्स है, जो पहले प्राइवेट जो बोलते हैं हम लोग, जब वो जो भी कंपनी के ओनर्स है उनके पास था, अब वो पब्लिक में भी जा सकता है, पब्लिक कैन आल्सो इन्वेस्ट इन दैट। जी, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को जैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपनी को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास आती है, और जैसे कि आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो पहली बार पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब वो ये कि जो पब्लिक को हम लोग पैसा ऑफर कर रहे हैं, तो अभी वो नॉर्मली वो कितना वैल्यू होता है, मतलब जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी जैसे एक लेमैन के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि कोई एक कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रहे है, वो शुरू होता है सपोज फॉर 100 रुपीज़ से, बट जो आईपीओ है, जो हम लोग आप बोलते हैं जैसे पब्लिक में हम लोग ऑफरिंग दे रहे हैं, तो नॉर्मली देखो लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग उस पर ऑफर कर सकते हैं। इट इज ओपन टू एवरीवन, पब्लिक एट लार्ज। तो हाउ डज इट गेट अलॉटेड, जो बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ, वो कैसे होता है? मतलब अगर आप उस पर भी थोड़ा अगर बता दें कि वो लक पे ही बेस्ड है या व्हाट आर दोस थिंग, मतलब अगर उस पर भी थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इट इज़ जैसे आपने बोला, ये लक के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 शेयर ही मेरे मतलब मैंने पब्लिक को इशू किया है, पर मेरे को जो डिमांड आ गई है वो 100 की है मान लीजिए, ठीक है, तो हर एक को एक शेयर मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 1000 लोग आ गए, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉटरी सिस्टम ओनली, और उसमें फिर आपके भाग्य का ही सहारा होगा। अच्छा, और सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना, आईपीओ के बारे में तो हम समझ लिए, बट जब आईपीओ कर रहे हैं, अभी जब कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल आपने देखा था पिछले कुछ साल पहले जोमेटो आईपीओ निकाला था, उसके बाद नायका ने निकाला था, पेटीएम ने निकाला था, सब बड़े बड़े कंपनीज आजकल आईपीओ जा रहे हैं, पब्लिक जा रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं। तो जब वी एज अ कंज्यूमर, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस आर कंज्यूमर साइड, जो हम लोग मेंबर्स है, क्या हम लोग को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जब वो इनिशियल ऑफरिंग आता है तब हम लोग को करना चाहिए, या हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, 1 महीना 2 महीना उनका प्रोग्रेस देखना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए ऐसे कंपनी में जो आईपीओ जा रहा है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, कि आईपीओ में एज अ कॉमन पर्सन उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? Very important question from the perspective of retail investors. So for investor awareness also and investors literacy also, this question is very important, whether हम IPO में इन्वेस्ट करें नहीं करें, रुक के करें, कब करें, कैसे करें, ये बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के मन में। लोग शेयर मार्केट सुनते तो हैं, लोगों को लगता है कि हम भी पैसा लगाएं, उसमें से कुछ रिटर्न जनरेट करें, लेकिन ये एक आईपीओ का मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। यहाँ पर देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच अ पर्सन नीड्स टू फॉलो। किसी भी पर्सन को अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सही जानकारी और पुख्ता जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या वेदर लोगों को अपना पूरा पैसा ही आईपीओ में डाल देना चाहिए या कैसा करना चाहिए। तो एक बहुत ही थंब रूल है इन्वेस्टमेंट का कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स एक पोर्टफोलियो बनाए। लेट्स सपोज कि आपके पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए आज, कि आप इसमें से 10,000 रुपये आपकी सेविंग है और आप इसको कहीं पर लगा करके आप चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसा इंक्रीज रिटर्न मिल जाए या इंटरेस्ट मिल जाए। अब आपके पास अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि फिक्स डिपॉजिट्स में जाए, आरडी में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए, शेयर मार्केट में जाए, आईपीओ में जाए, किधर लगाए पैसा, कहाँ पर लगाना चाहिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो हमारी ये सेविंग्स है ये हमारी गाढ़ी मेहनत का बचाया हुआ धन है। तो अब इन्वेस्टमेंट करने का मैं एक टिप देता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, कि आप आपके पास जो भी इन्वेस्टिबल फंड है, यानी जो भी आपके पास सरप्लस पैसा है, आप उसको बाइफरकेट करिए। जैसे मैंने बोला कि 10,000 रुपये है, तो आप 10,000 रुपये में से मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट किसी अच्छे बैंक में या नेशनलाइज बैंक में आप करते हैं तो आपका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट वहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम है एज़ कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस।
तो हमें अपने जो सरप्लस है उसको बाइफरकेट करना है। कुछ पोर्शन हमारा जाना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में, यानी मान ली 10,000 में से 5,000 रुपये आपका चला गया फिक्स डिपॉजिट में। अब जो बाकी का 5,000 बचा, यू कैन इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। लेट सपोज कि आपने 3,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, जहाँ पर कि आपका इनकम है कि स्टेडली ग्रो हो रहा है, या एक SIP के फॉर्म में आप डाल सकते हैं। बाकी का जो आपका 2,000 रुपये बचा, आप इससे चूज कर सकते हैं थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ अब आप इस 2,000 रुपये में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि 1,000 रुपये आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, 1,000 रुपीज़ आप IPO मार्केट में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि IPO और शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। हज़ारों कंपनीज हैं, हज़ारों तरह के शेयर्स हैं, हज़ारों तरह की इंडस्ट्रीज़ है। कोई कंपनी रियल एस्टेट में है, कोई टेक्सटाइल में है, कोई स्टील इंडस्ट्री में है, कोई एविएशन में है, कोई फर्नीचर में है, कुछ क्लोथिंग में। सो देयर आर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो पैसा हम कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं, क्या देख करके पैसा लगाएं। आज के समय में क्या होता है, लोग टिप्स पे भरोसा करते हैं। लोग को किसी ने बताया कि ये इस शेयर में पैसा बनेगा, आप उधर लगा दो। बट अगर आप किसी के टिप्स पे पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपका भगवान भरोसे है। आप ये मान के चलिए कि आपका वो पैसा बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप बैलेंस शीट अगर आप नहीं समझते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पैसा लगाने से पहले देखनी चाहिए। आप सबसे पहले देखिए कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी क्या कोई रेप्यूटेड कंपनी है, या आपने पहली बार उस कंपनी का नाम सुना है। अगर आपने वो कंपनी का नाम कहीं सुना है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उस कंपनी की साख है या गुडविल है मार्केट में। अब बात आता है कि एक कोई भी आदमी, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, इतना तो समझ में आता है कि प्रॉफिट, अगर जो भी पैसा मैं आज बिजनेस में कमाता हूँ और मेरा खर्चा माइनस करने के बाद, मेरे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरा प्रॉफिट है। तो जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ, क्या वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है? क्योंकि जो भी कंपनी आज मार्केट में शेयर्स जिसके भी आते हैं, उनके इंफॉर्मेशंस पब्लिकली अवेलेबल होते हैं कि वो कंपनी क्या प्रॉफिट बना रही है, क्या टर्नओवर है उसका, और क्या उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है ईयरली। आपके पास 3-4 साल 5 साल का डेटा होता है जिसको आप देख सकते हैं क्या हर साल उसकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है या कम हो रही है, उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है या कम हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। पब्लिकली अवेलेबल होने का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से है। जब किसी भी कंपनी का शेयर, चाहे वो IPO है या अदर देन IPO भी शेयर मार्केट है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारा BSE और NSE है, इसकी वेबसाइट पे जा कर के आप उस कंपनी की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस में आपको क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन में आपको मिलता है कि उस कंपनी की का क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट हुआ है लास्ट 4-5 सालों में, आप देख सकते हैं। कंपनी ने कोई बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं, या कंपनी को कोई बड़ा काम मिला है, या कंपनी के एनुअल रिपोर्ट है जहां पर कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का क्या है, उसमें कंपनी के मैनेजमेंट के व्यूज़ रहते हैं कि कंपनी कैसे प्रोग्रेस करने वाली होती है। तो ये थोड़ा सा टाइम, नेगेटिव चीजें भी अगर आते हैं तो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए, राइट? करेक्ट। और ये जब आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, लोगों को लगता है कि अरे मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं, कि मैं इतना पढ़ूं, ये सब चीज़ों को समझूं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तो आपका ही पैसा है जो आप लगा रहे हो। आप अपने खुद के पैसों को अगर जैसे तैसे कहीं भी छोड़ के चले गए और कल को कोई उसको उठा के ले गया, तो गलती किसकी है? आपकी है ना। तो यानी अगर हमारा पैसा है तो उसको कहीं भी पार्क करने से पहले, कहीं भी रखने से पहले हमें ये पड़ताल करनी चाहिए कि वो सेफ जगह तो है। सिर्फ एक अंधी दौर में शामिल नहीं होकर के कि हमारा पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ आपका पैसा बन भी सकता है और आपका पैसा लूज़ भी हो सकता है। दोनों ही अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी आँखें और कान खुले हुए हैं, आप चीज़ों को पढ़ के समझते हो सही ढंग से, तो आपका पैसा बनेगा। और एक चीज़ है, आप शॉर्ट टर्म में मत जाइए। कभी भी आपको पैसा डालना है, आप सोचे कि आज पैसा डाला, कल पैसा मेरा बढ़ गया, मैंने निकाल लिया, तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, ज़्यादा संभावना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, IPO में या शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं,
तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा कुछ मेरी चीज़ें सजेशंस हैं जिसके थ्रू हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपने काफी डिटेल में बताया कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो, एक साउंड डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप एक्सटर्नल कंसल्टेंसी और एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हो, जो भी लोग जैसे आपने बोला एक टिप्स वगैरह जो मिलता है आप लेना है, एक आप आपको सुन तो लीजिए, बट आपको खुद का भी एक सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि वेदर जो टिप आया है वो सही है कि नहीं है, क्या वो कंपनी वेदर प्रॉफिटेबल है नहीं है, क्या उसमें अगर लॉस भी अगर हो रहा है क्या बाद में जाके वो प्रॉफिट होने वाला है। तो वो आपको एक साउंड डिसीजन आपको लेना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जस्ट बिफोर हम लोग कंक्लूड करें ये सेशन, एक हम लोग ने टर्म है जो हम लोग ने मिस आउट कर दिया था, जो बहुत एक बड़ा सवाल रहता है। आपसे मेरे को पूछना है कि आईपीओ जब हम बोलते हैं, आईपीओ के पहले एक और एक स्टेप आता है जो एंजल इन्वेस्टर्स लोग बोलते हैं, वेंचर कैपिटल लोग बोलते हैं। तो ये नॉर्मली क्या टर्म होता है? एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? क्या वेंचर कैपिटलिस्ट जो बोलते हैं वो क्या है? जो लोग बोलते हैं प्राइवेट फंडिंग कभी कभी यूज करते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स है उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इफ अगर आप थोड़े लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सप्लेन करते हो व्हाट इज एंजल फंडिंग, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो। जी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपको एक जो फंडिंग की पूरी साइकिल है वही समझाना चाहूँगा, दर्शकों को उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि एक नई कंपनी है, बिल्कुल एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पैसा लेते हैं, बिल्कुल। उसको हम बोलते हैं प्री सीड राउंड। जब वो फ्रेंड्स या अपने जो भी आसपास के क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे पैसा मांगते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्री सीड फंडिंग। जब उसके बाद जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है कि फिर से वो उधर ही जाए, या फिर वो क्या करते हैं एंजल्स के पास जाते हैं। Okay. और एंजल्स कौन होते हैं? जैसे शार्क टैंक का ही वापस मैं अब अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो उनके जैसे कुछ फरिश्ते इन्वेस्टर्स जो उनके कंपनी में पैसा डालें, या जो उनके पास पैसा बहुत एक्यूमुलेटेड हो या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, जी, वो लोग एंजल इन्वेस्टर। जी, उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब उनका भी पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर पिक्चर में आते हैं वेंचर कैपिटल। ओके। तो वेंचर कैपिटल फंड्स एकदम अर्ली स्टेज या मिड स्केल में जब कंपनी की होती है तब वो एंटर करते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है या इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, तो उस टाइम पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और इसके बाद फिर आते हैं प्राइवेट इक्विटी। जब कंपनी बहुत अच्छी खासी बन गई है, उसका 5 या 10 साल का एक स्टेबलाइज हो गया, स्टेबल कंपनी हो गई है और उसने मार्केट में अपना दमखम दिखा दिया है, जब ये पूरी स्टेप हो जाती है तब वो देखते हैं कि मार्केट मतलब उस कंपनी ने सिंस वो मार्केट में काफ़ी टाइम से है और रिस्क अभी कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई है, तब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर इन सब के बाद फिर आता है आईपीओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है लेकिन अब जब तक एग्जिट नहीं लेंगे तब तक रिटर्न आएगा नहीं। तो ये एक कंप्लीट सर्कल है, मतलब एक अच्छा। तो इट इज नॉट कि एनीथिंग इज इंटररिलेटेड, नॉर्मली ये सब स्टेज बाय स्टेज चलता है जी। प्री सीड से लेके फिर एंजल इन्वेस्टमेंट, फिर वेंचर कैपिटल, फिर प्राइवेट इक्विटी एंड देन आईपीओ। जी, तो ये पूरा एक स्टेज में चलता है, कोई भी कंपनी जब भी स्टार्ट करता है। एंड नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होना चाहिए, इट कैन बी पॉसिबल कि एक आध स्टेप बीच में स्किप भी हो सकता है। जी, जी। अगर आपको एंजल इन्वेस्टर से इतना ही फंडिंग आ गया आप डायरेक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी में भी जा सकते हो। करेक्ट। देयर इज नॉट एनी अगेन एनी दिस रोड मैप कि आपको यही फॉलो करना है, बेस्ड ऑन आपका कंपनी का जो सिचुएशन आपको एक कॉल लेना है। आई थिंक सो आज की सेशन में हमने काफी डिटेल में हमने सब समझा है। एक सवाल है जो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिफोर वी एंड दिस सेशन कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एनी प्रोफेशनल, चाहे वो एमबीए क्वालिफाइड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, क्या वो फंडिंग वाले फील्ड में, क्योंकि एक नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है, इट इज अ नॉन ट्रेडिशनल थिंग। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली हम लोग ऑडिट, टैक्सेशन, अश्योरेंस सर्विसेज वो सब में जाते हैं। फंडिंग वाला एक चीज है जो काफी न्यू है, डेवलपिंग है, एंड बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 20 years, what is your suggestion कि अगर कोई न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट should they come in this field, and अगर फील्ड में आ गए तो now that you have your experience, क्या ये फील्ड में आपको एक रिटर्न भी मिला है क्या? मतलब आप देखते हो कि इसका स्कोप और बढ़ सकता है या इट हैज सैचुरेटेड राइट नाउ? व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? श्रेयस जी, आपने कमाई वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन ये है कि आज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिल्कुल। देयर आर सो मेनी फील्ड्स। तो आज ये एक फंडिंग जो एक फील्ड है, हम लोग इसे टेक्निकल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक आज बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ मार्केट है और इसमें जो रिटर्न्स हैं या जो ये फील्ड है बहुत ही रिवॉर्डिंग है और साथ ही साथ चैलेंजिंग भी है। तो आपको मैं इस फील्ड्स के कुछ सम स्ट्रेंथ्स और कुछ थ्रेड्स एंड वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा जो मेरा खुद का जर्नी है और जो मैंने स्टार्ट किया कि आज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जा सकते हो, आप फंडिंग में जा सकते हो, आप और किसी भी तरह के डिफरेंट एवेन्यूज़ जो अवेलेबल है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फंडिंग को आप करियर चूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल एक्यूमेन कितना है और आपके अंदर मार्केटिंग स्किल कितनी है। जो स्किल्स आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इस फील्ड में रिक्वायर्ड है कि अगर फंड रेज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कि उस कंपनी को कैसी ज़रूरत है। चाहे वो डेट, जैसा पहला क्वेश्चन था आपको कि डेट लगेगा या इक्विटी लगेगी। अगर डेट लगेगा तो कितना डेट रेज करना चाहिए, कितना इक्विटी लेना चाहिए, या अगर पे लेना चाहिए या मिक्स अगर लेना है हमें डेट एंड इक्विटी का तो व्हाट शुड बी द राइट एंड और ऑप्टिमम मिक्स। तो वो और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वेदर वी शुड गो फॉर अ टर्म लोन और वेदर वी शुड गो फॉर अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और वेदर वी शुड गो फॉर अ इक्विटी फंडिंग और मिक्स, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। तो बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं उस इक्विटी फंडिंग के लिए। तो इसके लिए श्रेयस जी एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जो कि लोगों को हेल्प करेगा कि आप कैसे फंड रेज कर सकते हो, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना किसी आउटसाइड कंसल्टेंट का हेल्प लिए हुए, आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पर आप अपने फील्ड के राइट इन्वेस्टर को ढूंढ सकते हो। ये बात मैं इक्विटी पर फंडिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि डेट में तो आज एक मेरे पास स्ट्रक्चर्ड अवेलेबल है कि आज मेरे पास नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, NBFCs हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। सो इट इज़ समवॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड फील्ड। बट इक्विटी फील्ड आज भी मेरा अनस्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पर कि अगर कोई इक्विटी रेज करना चाहे तो सबसे पहले उसके पास क्वेश्चन आता है कि मैं पैसा कहाँ से लूँ, कि मैं शार्क टैंक में जाऊँ, वहाँ नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर शार्क टैंक में नहीं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। करेक्ट कि देयर आर नो इन्वेस्टर्स या ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक फॉर्म अवेलेबल नहीं है जो कि आपको इन्वेस्टर तक, राइट इन्वेस्टर तक पहुंचा सके। या अगर आप इन्वेस्टर कोई ढूंढ भी लेते हो तो जितना अमाउंट आप चाह रहे हो उतना उसकी कैपेसिटी है कि नहीं पे करने की, वेदर आप जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हो वेदर उस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करता है कि नहीं, आपको पैसा जितने पीरियड के लिए चाहिए उतने पीरियड के लिए वो पैसा देता है कि नहीं, अगर आपको उसकी इन्वॉल्वमेंट कंपनी में चाहिए या नहीं चाहिए तो वेदर उस इन्वेस्टर की प्रेफरेंस क्या है कि वो कंपनी में इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स स्ट्रैटेजिक है या वो नॉन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जब आप इक्विटी फंडिंग के लिए जाते हो। तो इसका हम एक वन शॉट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक ऐसा पोर्टल डेवलप कर रहे हैं जहां पर कि आपको इन्वेस्टर्स की लिस्ट रेडीमेड मिलेगी, जहां पर कि आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल होंगे। लेट्स सपोज आपको 20 करोड़ रुपया रेज करना है तो आपके पास एक फिल्टर अवेलेबल होगा कि हु ऑल आर द इन्वेस्टर्स हु इज रेडी टू गिव 20 करोड़ रुपीज एटलीस्ट। तो आप वो फिल्टर लगाएंगे तो 20 करोड़ रुपया का आपको फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद आप चाहेंगे कि मुंबई में कितने, उस 20 करोड़ देने वाले इन्वेस्टर्स में से मुंबई में कितने लोग हैं, तो आप अगर उस पर लोकेशन का फिल्टर लगाएंगे तो मुंबई के इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे कि मुंबई के अंदर कितने HNIs हैं, कितने फैमिली ऑफिसेस हैं, कितने वेंचर कैपिटल्स हैं, प्राइवेट इक्विटी कौन से हैं। उसमें ना सिर्फ आपको उसका नाम मिलेगा, उसका पता मिलेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उसका ईमेल ID मिलेगा और जो भी डिटेल आपको चाहिए कि वो कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है, प्लस उस इन्वेस्टर की प्रेफरेंस क्या है कि अगर लेट्स सपोज आप टेक्सटाइल फील्ड में आपका बिजनेस है तो आप अगर टेक्सटाइल फील्ड का फिल्टर लगाएंगे वहां पर तो टेक्सटाइल फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले कितने इन्वेस्टर्स हैं मुंबई में, वो आपके सामने वो आ जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी लाइव होने वाला है आप लोगों के सामने
और वो प्लेटफॉर्म जब लाइव होगा तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू फाइंड योर राइट इन्वेस्टर बाय सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर ऑफिस। आपको उसके लिए किसी कंसल्टेंट के पास, किसी मिडिल मैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी के लिए खुद पैसा रेज कर पाएंगे, और जहाँ भी आपको अगर मदद की ज़रूरत लगेगी तो देयर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल, देयर आर एनालिस्ट अवेलेबल। तो अभी हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनको वेदर ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इस फील्ड, इस जो चैनल के माध्यम से, कि ये जो फील्ड है ये एक उभरता हुआ फील्ड है और ये एक हाईएस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड है, जहाँ पर कि आप अपने वर्क टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको कैसा काम करना है, कितना काम करना है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। आपको राइट कनेक्ट्स होने चाहिए। शुरू में ज़रूर आपको इस चीज़ को सेटअप करने में और इस चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, विच इज़ द गैप ऑफ 2-3 ईयर्स। और मैं समझता हूँ कि आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस में अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आना चाहें तो 2 से 3 साल का समय लगता है, और अगर आपने वो समय दिया तो स्काई इज़ द लिमिट। बिकॉज आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। देयर आर नॉट मैनी फर्म्स और नॉट मैनी प्रोफेशनल्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड, और अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो दे डोंट अंडरस्टैंड द निटिग्रिटी ऑफ द फंडिंग। तो जो स्केल अवेलेबल है यहाँ पर काम करने का, वो स्काई इज़ द लिमिट है। आपके पास, आप डेट फंडिंग में जा सकते हो, इक्विटी फंडिंग में जा सकते हो, हाइब्रिड मॉडल्स में जा सकते हो, आईपीओज में जा सकते हो, एंड देयर आर अदर ऑप्शंस की सिर्फ अगर मैं इक्विटी फंडिंग की बात करता हूँ तो सिर्फ प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ ही नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हैं, बोनस इश्यूज है, ई-शॉप्स है, राइट इश्यूज हैं, देन देयर कुड बी सो मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच यू कैन रेज इक्विटी फंडिंग। ओपन ऑफर इज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस। सो आज ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा टच नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए, और अगर आप मेहनत करते हैं इस फील्ड में तो रिवॉर्ड रियली इट्स वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड, कि जहाँ पर एक अच्छा एज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। और जहाँ तक डेट की बात है तो डेट में भी लोग सर सोचते हैं कि सिर्फ बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग कर दिया, सो बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट। डेट में भी आज आपके पास NCDs है, CCDs हैं, CCPS है, या फिर आपके पास कमर्शियल पेपर्स हैं, बॉन्ड्स है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेमिटी ऑफ द मार्केट। आज क्या है इंडिया में, मेरा डेट फंडिंग या बैंक्स के थ्रू फंडिंग लोग स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल है, बट जो अदर फॉर्म्स ऑफ फंडिंग है वो इतना ग्रोन अप नहीं है या उसका इतना मार्केट नहीं है, जो कि आउटसाइड अगर हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ में ये मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब हमारे पास इंडिया में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आवर कंट्री इज़ गोइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर मार्केट में अवेलेबल है, बॉन्ड मार्केट अवेलेबल है, मनी मार्केट है, या फिर मेरे जो अदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेट के, वो जो आज इंडिया में जिनका कम यूज़ हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इन फंडिंग द स्काई इज़ द लिमिट, एंड candidate who are really sincere and wants to make a career in investment banking and the funding option, it's really a very good field and growing field. I think so लास्ट में जब आपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात किया, इतने सारे टेक्निकल टर्म्स इतने सारे यूज किए, आई थिंक सो ये एक सेशन 1 घंटे का सेशन इज एनी टाइम वेरी लेस फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक अबाउट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल जिनको उसमें फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अगर उस वो 1 घंटे में तो समझना बहुत ही नामुमकिन है, बट ऑफ कोर्स थ्रू आउट दिस हमने काफ़ी कुछ डिटेल में भी समझा अबाउट आईपीओज, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फंडिंग, आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करो तब कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट लास्टली आई जस्ट वांट टू से बिफोर वी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, प्रवीण सर एज वेल एज सौम्या सर फॉर कमिंग एंड गाइडिंग ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, यू नो फंडिंग क्या है एंड कैसे फंडिंग करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक सेशन में हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम लोग बाद में भी एक और एक सेशन लेंगे इस पे, एंड आपको डेफिनेटली इनवाइट वापस करेंगे कि और हम लोग इसमें डिटेल में और क्या हम लोग समझ सकते हैं।
एंड इन द मीन टाइम अगर आपके पास भी कोई क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आप डेफिनेटली हमको रीच आउट कर सकते हो। हमारा नंबर है 02242551414। मैं रिपीट करूंगा 02242551414। दैट इज अ महासेवा हेल्पलाइन नंबर। वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी फंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्टली सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपका शेयर कर सकते हो कुछ कांटेक्ट डिटेल्स या ईमेल आईडी। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द मेंबर्स आल्सो। अब बिल्कुल श्रेयस जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा महासेवा टीम को, और मैं ये बोलूँगा कि ये रियली में ये महासेवा है। आप लोग जो कर रहे हो, ये सोसाइटी एट लार्ज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या दर्शक हैं, इनको जो आप एजुकेशन या जो ये अवेयरनेस दे रहे हो, और ये जो नॉलेज है इनवैल्यूएबल है। आज के डेट में कहीं पर भी फंडिंग की कोई क्लास नहीं लगती है, आज के डेट में कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, बट ये जो सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये एक्चुअली में एक सेवा का कार्य है, एक सर्विस है। तो मैं अब दिल से इस महासेवा टीम को और शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आकर के इस पे लोगों को बता सके। और ये मैं बताता हूँ कि फंडिंग जो एक फील्ड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें एक एक टॉपिक पे वी कैन डिस्कस इन डिटेल, कैसे फंड मिल सकता है अपने को, कैसे मिलेगा, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, तो कैसे ये फंडिंग हो सकता है, एक एक स्टेप में हम डिटेल से बात कर सकते हैं। जब भी मौका लगेगा और शर्मा जी हमें दोबारा बुलाएंगे तो हम ज़रूर इस पे बात करना चाहेंगे। और जो हमारी फर्म है उसका नाम फाइनेंशियल माइंड्स है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। अगर आप गूगल पे भी जाके फाइनेंशियल माइंड्स सर्च करेंगे तो यू विल गेट आवर वेबसाइट एंड आवर एड्रेस। हमारा ऑफिस अंधेरी ईस्ट में चकाला मेट्रो स्टेशन के पास में है। और जो हमारे कंपनी का अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चाहिए, सो इट्स ऑल अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, एंड आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके सारा डिटेल फाइनेंशियल माइंड सर्च करते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यू कैन रीच आउट ईजिली टू अस इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस रिक्वायर्ड, और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विद रिगार्ड टू द फंडिंग। एंड हमारी फर्म 100% डेडिकेटेड टू फंडिंग है। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, बस फंडिंग, और वो डेट, इक्विटी, आईपीओ या किसी भी सॉर्ट ऑफ टाइप की फंडिंग हो, सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम है। तो उसमें हम आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे सर ने बोला, इनका फाइनेंशियल माइंड्स करके है, आप गूगल पे सर्च करके उनका कांटेक्ट डिटेल लेके आप डेफिनेटली, अगर कोई भी फंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा या कुछ आपको हेल्प या क्वेरीज रहेगा, आप डेफिनेटली उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। Once again, I just want to thank you, sir, for coming. Thank you, Samir sir, for coming and guiding the whole of our members and all the people who are watching. And with this, we'll conclude today's session. सिर्फ जानने के पहले मैं बोलूँगा, वापस एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हैप्पी गणेश चतुर्थी, एंड ये हफ्ता और आने वाले सारे हफ्ते आपके लिए अच्छे जाए। फेस्टिवल्स वाले पूरा सीजन चालू हो चुका है, तो सब हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे अबाउट कैपिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और भी वेरियस टॉपिक्स हम लोग बात करते रहेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट वीक, एंड वापस जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।